Welcome back. This is the second session of CA Foundation Accounts Inventory Valuation. तो आज के इस सेशन में स्पेशल क्या है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट का यूज कैसे होता है टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक, क्या कनेक्शन है इन दोनों में। So we learned that the trading account is an account which records all the direct expenses on the debit side and direct incomes on the credit side. हमने फॉर्मेट लिया, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है वो हमने फर्स्ट सेशन में देखा। अगर आपने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया है तो वीडियो इज अवेलेबल, लिंक आपको भेज दिया है, यूट्यूब पे भी रख दिया है, यू कैन यूज दैट। आज हम देखेंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट कैसे रोल प्ले करता है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी शुड आइडियली चेक अवर होमवर्क, राइट? So just a minute. Let's check the homework questions first so that we can immediately move forward. Okay, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या-क्या exactly homework के questions के आंसर होने चाहिए थे। And I hope everyone has solved the homework questions. Question number 5 से आगे हमें जाना है, तो चलिए देखते हैं। Your client Sita gives you the following information: opening stock, purchase, carriage inward, sales, closing stock, wages and gross profit we have to find out. As we know, opening stock debit side में जाता है, purchase also goes on debit side, carriage inward debit, sales on credit, closing stock on credit, wages on debit. You just post it to the trading account. ये हमने पोस्ट कर दिया, तो इनकम साइड की टोटल है 2,22,000 and 175,500, एक्सपेंस साइड की टोटल 46,500 is your gross profit. Is it the same answer? आपका भी आंसर यही आया है? Yes sir. Great. तो आइए अभी सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम वे सारे डिटेल्स दिए हुए थे, वी हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस डेबिटेड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटेड, 176,400 minus 1,28,400, 48,000 is your gross profit. Is this answer correct? Is this correct? Yes sir. Great. आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना था, so you have to put all the informations: opening stock, purchases, carriage inward, wages, then उसके बाद sales, closing stock, and sorry, closing stock will be the balancing figure, gross profit is already given, and finally जो balancing figure हमें मिला, डेबिट की टोटल 1,81,600 minus 71,200, we got the closing stock. करेक्ट है? Yes sir, correct है. Great. अब आइए 8th क्वेश्चन के लिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, एवरीथिंग वाज गिवन। वी रिकॉर्डेड सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड। सो डेबिट टोटल 1,38,500 minus 55,000 सेल्स, 83,500 is the value of closing stock. Is this correct? Yes sir. Okay. Now let's go for the last one. यहाँ पे मैंने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था और आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना था। तो चलिए देखते हैं क्या आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक निकाल पाए हो। देखिए क्या क्या दिया उन्होंने। परचेसेस 56,000, कैरेज इनवर्ड 12,000, सेल्स 2,30,000, क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो गिवन टू अस 89,000. इट इज आल्सो गिवन the next year. Yes, correct. No, we can just find out the balancing figure. I'll show you. Closing stock is also given. Closing stock will be the opening stock of next year. That is correct. But now we have to find out the balancing figure, which is opening stock. So what I will do is now I will make the total of credit side first. And it is 3,19,000. So 3,19,000 से आपको ये सारे आइटम्स लेस करने हैं, as simple as this. 3,19,000 माइनस ये डेबिट साइड की टोटल 56,000 and 12,000 and 11,000 and 34,000, इसकी टोटल है 1,13,000. So simply 3,19,000 minus 1,13,000, you got 2,06,000. This is your opening stock. क्या किसी को ये आंसर आया? Anyone? Of course, it was something new for you. मैंने ऐसे ही थोड़ा आपको कहानी में ट्विस्ट दिया था. Don't worry, I'll explain it to you again. Check it again. They have already given us sales and closing stock. So credit side is clear. मैंने क्रेडिट की टोटल कर ली, उसमें से मैंने परचेसेस लेस किए, कैरेज इनवर्ड लेस किया, वेजेस लेस किया, ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो गिवन. So simply the balancing figures. Could you get it? क्या आपको ये समझ में आया? देख लीजिए एक बार. Yes sir. ओके तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट के आसपास घूमने वाले हैं। आपके क्लाइंट का कहना है कि सर मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, परचेस, कैरेज इनवर्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन मुझे ना याद नहीं कि मैंने जब ये इस साल का बिजनेस स्टार्ट किया या प्रोडक्शन या ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ।
पहले क्रेडिट साइड में आया, मैंने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 3,22,000 एंड 1,24,600, तो टोटल हो गया 4,46,600। फिर डेबिट में ओपनिंग स्टॉक की जगह ब्लैंक रख दीजिए। उसके बाद परचेसेस आपको मिला 78,400, कैरेज इनवर्ड दिया है, वेजेस दिया है, इवन प्रॉफिट भी दे दिया है। तो फिर इन सब की टोटल मैंने की 158,200, और जो बैलेंसिंग फिगर निकाला था इस 4,46,600 माइनस 1,58,200, दैट इज माय ग्रॉस, सॉरी दैट इज माय ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्रेडिट की टोटल है, या मैं लिख देता हूँ क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। सो इस तरीके से आपको आपका ओपनिंग स्टॉक मिला, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर। सो अगेन वी हैव यूज्ड द ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखिए, योर क्लाइंट हरी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगेन परचेज, कैरेज इनवर्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, जीपी इज ऑलरेडी, जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट, आर ऑलरेडी गिवन। तो मैंने क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दिया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट की टोटल होती है 9,95,000, परचेसेस 1,20,000, कैरेज इनवर्ड 21,000, वेजेस 45,000, ग्रॉस प्रॉफिट 76,000, तो डेबिट की टोटल हो जाती है 2,62,000, जो 995 में से लेस किया। तो योर आंसर इज करेक्ट वरदान सारा, आपका आंसर परफेक्ट है। और 3 लोगों का आंसर आया है, सर्वेश श्लोक, वेरी गुड। तो चलिए आपको भी ये हम भेज देंगे, सॉरी आपका भी आंसर करेक्ट है, सो गुड टू गो। ओके, तो चलिए देखते हैं एक 13th वाला ये क्वेश्चन। मिस्टर अजय क्या कहता है, वो कहता है सर मेरा ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेसेस है, वेजेस है, सैलरी जो है वो नहीं आएगी। कभी भी याद रखिए, जानबूझ के आपको दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, सैलरी कभी भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि सैलरी इज एज्यूम टू बी, और इट इज एक्चुअली द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर जरा हमें फर्क बताइए सैलरी और वेजेस में। देखिए, जो आदमी मशीन पे खड़ा होकर काम करता है उसको जो आपने 10,000 रुपए का चेक दिया या कैश में दिया, दैट इज वेजेस। और जो वॉचमैन बाहर खड़ा है या जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है उसको जो दिया जाता है दैट इज सैलरी। देखिए 4 दिन अगर वॉचमैन नहीं भी आएगा ना फिर भी कंपनी चलती रहेगी, 5 दिन अकाउंटेंट ने छुट्टी ले ली फिर भी कंपनी चलती रहेगी, लेकिन वर्कर अगर नहीं आया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसलिए वर्कर को जो देते हैं उसको कहते हैं वेजेस, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और आप जो इनको पेमेंट करते हो, जैसे अकाउंटेंट हो या आपका वॉचमैन हो, पैसे उतने ही होंगे शायद, लेकिन ऑफ कोर्स अकाउंटेंट की सैलरी ज्यादा हो ऐसा हमें हमेशा ही लगता है, पैसे भले उतने ही हो लेकिन वो जाएगा P&L अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको सैलरी को टोटली इग्नोर करना है हमेशा। सर और किस किस को इग्नोर करेंगे, मैं धीरे धीरे आपको बताऊं, डोंट वरी। तो चलिए अभी आप मुझे बताइए तो जरा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट या क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट के? चलिए फटाफट। डेबिट। परचेसेस डेबिट वेजेस डेबिट। सैलरी छोड़ देते हैं, सेल्स क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। वेरी गुड। चलो अच्छा है, आपको फॉर्मेट तो समझ में आ गया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। मैंने क्लाइंट को क्या, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी आपका बता देता हूँ कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करता हूँ। मैंने पूछा बताइए आपके सेल्स कितने थे, उसने कहा सर 3,12,000 के सेल्स थे। मैंने पूछा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, बोला सर अगर क्लोजिंग स्टॉक मालूम होता तो आपके ऑफिस में क्यों आता, नहीं मालूम है ना मुझे, ठीक है कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसने कहा 1,42,400। परचेसेस कितने हैं, ही सेड 1,96,800। वेजेस कितने हैं, 54,400। उसने कहा सैलरी, मैंने कहा सैलरी नहीं आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल। तो फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या, उसने कहा सर अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है 20% ऑफ सेल्स। अब आप बोलोगे सर ये 20% ऑफ सेल्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे वो होगा, या जितना भी सेल्स करोगे उस पे 20% आप प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो मैंने क्लाइंट से पूछा आपका सेल्स कितना है, उसने कहा सर ये है मेरा सेल्स 3,12,000। तो मैंने कहा जितना भी आप सेल्स करोगे उसका 20% प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऐसा आप जनरली माल बेचते हो। तो चलिए सिंपल सी बात है, तो मैंने कहा 20% ऑफ योर सेल्स अमाउंट, सेल्स है 3,20,000, 20% मल्टीप्लाइड बाय 3,12,000 सॉरी इज 62,400। कुड यू गेट इट? मैंने कैसे निकाला ये ग्रॉस प्रॉफिट? यस सर। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट है ना परसेंटेज में ही होता है। आप अगर कभी शॉप में जाते हो, कुछ लेते हो, बार्गेनिंग करते हो ना, तो वो आपको बताते सर बार्गेनिंग मत कीजिए ना, मैं तो 2% मार्जिन पे काम कर रहा हूँ।
अब हमें पता नहीं चलता ये क्या बोल रहा है, तो उसका मतलब है कि सेल्स के 2% ही मुझे प्रॉफिट मिलता है। ऑफ कोर्स कोई भी सेलर उसका प्योर जीपी रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बाहर वालों को नहीं बताएगा, जनरल स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, उनको तो सब सच बताना ही पड़ता है। तो यहाँ पे उसने बताया कि जो भी मैं सेल्स करता हूँ 3,12,000, उसका 20% मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो 62,400। तो मैंने कहा हो गया आपका काम, डेबिट साइड की टोटल कीजिए, वो है 4,56,000 और उसमें से 3,12,000 लेस कीजिए, तो मिल गया आपको आपका आंसर। मैंने कहा सर देखिए एकदम सिंपल सी बात है, डेबिट साइड की टोटल है 4,56,000, माइनस कीजिए आप 3,12,000, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं कितना आया। इट इज 1,44,000 डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने नया क्या सीखा, हमने यहाँ पे नया ये सीखा कि कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज भी दिया जा सकता है। सो चेक इट अगेन, ओपनिंग स्टॉक वाज गिवन, परचेसेस वेर गिवन, वेजेस वेर गिवन, सेल्स वेर गिवन, और सेल्स पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा मेरा क्लाइंट कहता है, तो ठीक है, सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 20% इज योर जीपी, और जो बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट माइनस क्रेडिट, यू गॉट द क्लोजिंग स्टॉक। इन दिस वे हमने क्लाइंट का क्लोजिंग स्टॉक उसको बता दिया। ओके ये देखिए, इसका नाम बदल देते हैं, थोड़ा नामकरण विधि हो जाए, अजय का नाम हर बार ना आए इसलिए। चलिए, विजय गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक दिया है 10% ऑफ सेल्स, परचेज दिया है 30% ऑफ सेल्स, वेजेस दिया है 15% ऑफ सेल्स, सैलरी दिया है 20% ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो P&L अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स दे दिया है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 60% ऑफ सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक उसको ढूंढना है। तो मैं क्लाइंट से कहूंगा सर इसके लिए ना आपको थोड़ी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेरा कैलकुलेटर जो है उसका डिप्रिसिएशन भी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि आपने सब कुछ तो परसेंटेज में देके रखा है, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा इस पे। तो चलिए करते हैं, सब लोग मेरे साथ हैं? यस सर। चलो सॉल्व करते हैं। अभी आपके जैसे होशियार बच्चों के लिए ये तो सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, सीए फाउंडेशन में होता है, सो आप वेरी वेल यू कैन यूज इट। अब देखिए सबका बेस क्या है, सेल्स है, सबका मालिक एक ही है फिलहाल, सेल्स, तो पहले उसको इनवाइट कर लो। सेल्स अमाउंट गिवन टू बी 9 लाख। चलिए अभी ओपनिंग स्टॉक को बुलाओ, ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। वो कहता है सर मेरी अमाउंट है 10% ऑफ सेल्स, तो 9 लाख का 10% मतलब 90,000, ये मिल गया, करेक्ट। परचेसेस आर गिवन टू बी 30%, बताइए कितना आएगा 30% ऑफ 9 लाख, 9 3 are 27, 2,70,000। 2 लाख। उसके बाद वेजेस 15% ऑफ सेल्स, सो 15% इज 1,35,000, 15 9 are 135। उसके बाद सैलरी तो मैं नहीं लेने वाला, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है 60% ऑफ सेल्स, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 60% ऑफ सेल्स। तो मैंने कहा सर अभी क्या बाकी है, फिर सब कुछ तो मिल गया, तो डेबिट की टोटल कर लो, इट इज 10,35,000, और क्लोजिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर नाउ, एंड इट इज हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड एज यू नो, डेबिट की टोटल माइनस क्रेडिट की टोटल। डेबिट टोटल इज 10,35,000 माइनस 9 लाख। चलिए देखते हैं फिर कितना आया वो, so it is 1,35,000। so in this way हमने सारे आइटम्स परसेंटेज पे निकाले। आपने जो पूछा कि सर क्या सिर्फ जीपी परसेंटेज पे आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं, कैलकुलेशन देने के लिए वो कुछ भी आपको परसेंटेज फॉर्मेट में दे सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, उसके बाद वेजेस, जीपी, सब कुछ आपको परसेंटेज में दिया था, तो पहले हमेशा सेल्स लिख लीजिए बिकॉज दैट्स अ बेस, फिर डेबिट साइड की सारी टोटल आ गई, बैलेंसिंग फिगर इज योर क्लोजिंग स्टॉक। इन दिस वे वी अगेन फाउंड अ क्लोजिंग स्टॉक फॉर आवर। चलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें इस क्वेश्चन में। मिस्टर अनिल इज योर क्लाइंट, तो बताइए मुझे आपका ओपनिंग स्टॉक कितना परसेंट आपको लगता है, कोई भी रैंडम नंबर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बताइए। 20%। 10%। ओके, जो पहला नंबर मैं सुनूंगा वो मैं लिख देता हूँ। किसी ने मुझे कहा 20%। ओके चलिए फटाफट बताइए। परचेसेस 10%। 10% ऑफ सेल्स। ओके, वेजेस 15 ओनली। 15 ही। ओके, सैलरी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स की अमाउंट बताइए जो भी आपको अच्छी लगती है। 10 लाख। 1,50,000।
अच्छा 10 हमने लाख। पहले 10 लाख सुना, ठीक है 10 लाख ले लेते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट 45%. थोड़ा बढ़ा देते हैं 62% कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर अभी मैंने क्लाइंट से कहा सर आप टेंशन मत लीजिए, आप फीस देने की तैयारी रखिए, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। सो पहले ऑब्वियसली बेस क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या पहले लिखूं इन सब में से, कौन सी अमाउंट पहले लिखूं? सेल्स। सर आप सेल्स पहले लिख लीजिए क्योंकि वो तो बेस है 10 लाख। तो चलिए ओपनिंग स्टॉक 20% ऑफ सेल्स मतलब 10 लाख का 20% 2 लाख हुआ। परचेसेस 10% ऑफ सेल्स मतलब 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख हुआ। उसके बाद वेजेस हो गए आपके 15% मतलब 1,50,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 62% मतलब 6,20,000। तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड की टोटल हुई 10,70,000, क्रेडिट में 10 लाख है, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। 10,70,000 debit total minus 10 lakh credit total, and this is your closing stock. So in this way again we have found closing stock for our client successfully. तो आज के सेशन में हमने क्या देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करके क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए क्या क्या कहानी में ट्विस्ट हो सकते हैं, तो ये सारे हमने यहाँ पे देखे। अभी भी हमारा पूरा फोकस एक ही सेशन एक ही पार्ट पे है एंड दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन अगले सेशन में हम इसमें और ज्यादा कहानी में ट्विस्ट देखेंगे। इसमें क्या आएगा कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों नहीं दिए तो कैसे ढूंढेंगे, अगर कुछ हिंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज डबल ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज ट्रिपल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से आने वाले हैं, लेकिन वो अगले सेशन में। इस सेशन में हमारे लिए इतना ही। आपको अगर कुछ भी लगता है तो आप आपके डिफिकल्टीज मुझे सेंड कर सकते हैं, आई विल श्योरली सॉल्व देम। ओके, सो दिस वाज अ स्पेशल वीडियो ऑफ डे 2 of inventory valuation for CA Foundation. Thank you.